Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And now we will move towards the third example. Yesterday we have learned about the parameter. Yesterday what we have learned? We have learned about the parameter. Okay. So what is a parameter? क्या होता है parameter? Parameter is simple. It is a total length of the closed boundary. मैं फिर से बोलता हूँ. It is a total length of closed boundary. That means if you want to find out the perimeter of any figure, it must be closed. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्लोज फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई फिगर ओपन है तो हम उसका पैरामीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते. पैरामीटर का मतलब ही होता है, पैरीमीटर इज अ वर्ड विच केम फ्रॉम द टू विच इज अ जॉइंट ऑफ पैरी एंड मीटर. क्या बोला मैंने? पैरीमीटर जो है वो दो शब्द का मेल है, दैट इज पैरी एंड मीटर. पैरी का मतलब होता है अराउंड, okay, and the meter is related with the length. That means a total around whatever, if you are moving to around a figure, then what will be the length? That means what? It is a total length of closed boundary. What is a parameter? The parameter is a total length of closed boundary. Let us suppose that there is a polygon. We have learned that what is the polygons जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग साइड के हिसाब से हम लोग उनको नाम देते हैं. Let us suppose that if the polygon have a 3 sides, that means it is a triangle. Then quadrilateral, if there are 4 sides. If there are 5 sides, then it is a pentagon. 6 sides, hexagon. 7 side, that is a septagon. और okay, then दूसरे बुक में और कुछ भी हो सकता है, सेप्टागन का और अलग अलग नाम है. ठीक है, सेप्टागन हो गया. 8 is octagon, 9 is nonagon, and the 10 side is a decagon. ठीक है. So if you want to find out a perimeter of any polygon, किसी भी polygon का अगर आपको perimeter find out करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have to all the sides, जितनी भी साइड गिवन है आपको पूरा एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है. अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है. लेट अस सपोज दैट आई एम टेकिंग अ पॉलीगन विच इज अ ट्राइंगल. ध्यान से आगे देखो, इट इज अ ट्राइंगल. ठीक है, दैट इज अ ट्राइंगल. And as you can see here, this is the polygon having 3 sides. This triangle have a 3 sides. Okay, and let us suppose that I have another figure which is looking like this. Okay, consider that is a line segment. सीधा अगर नहीं बन रहा है तो भी समझो कि सीधा ही है अभी थोड़ी देर के लिए. ठीक है, so that is a quadrilateral. Now you can see this is a triangle which is made up of 3 line segments. This is a quadrilateral which is made up of 4 line segments. And if you want to find out a perimeter of this triangle, so that is suppose that is a 2 centimeter, this is a 3.5 centimeter, and that is a 4.5 centimeters. Dear students, listen carefully. All the things are given in a centimeters. Okay, ठीक है, 2 centimeter, 3.5 centimeter, and 4.5 centimeter. ठीक है, very good. Now what we have to do? We have to find the perimeter of this triangle. We have to find the perimeter of this triangle. So if you want to find out the perimeter of this triangle, we have to add all the sides. What we have to do? We have to add all the sides of a given triangle. Okay, and the triangle has the 3 sides. So I will add all the sides, which is 2 centimeter plus 3.5 centimeter, 3.5 centimeter plus, don't try it, 4.5 centimeter. Okay, 4.5 centimeters. Now when you will add, you will get 3 plus 4 is 3 plus 4 plus 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0.5 plus 0.5 is 10. So that is a 10 centimeters. Okay, that is a perimeter of this triangle. Let us suppose that here the meter is written here. मान लो यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखा हुआ है. ठीक है, अब आप बोलोगे सर मीटर सेंटीमीटर क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट इज अ लाइन सेगमेंट एंड वी नो दैट द फिक्स अ लाइन सेगमेंट हैव द फिक्स लेंथ, है ना. लाइन सेगमेंट को क्या होता है? फिक्स लेंथ होती है, तो हमको लेंथ दिया हुआ है. ठीक है, सो वी विल राइट हियर मीटर. हम लोग सेंटीमीटर की जगह क्या कर देंगे? मीटर लिख देंगे. ठीक है, but the addition we have to do the new numbers. When you will add these numbers to plus 3.5 plus 4.5, you will get 10 meters. Okay, so that is a 10 meters. Now let us suppose that it is 5 meters. 2 नहीं, 2 ज्यादा ही कम हो गया. 1 minute. That is 3, that is also 3, and that is 4. Okay, now dear students, here the unit is not given. हमारे पास में सिर्फ नंबर्स ही हैं, 5, 3, 3, 4.
ओके, यहाँ पर सिर्फ नंबर ही है, हमको नहीं पता वो मीटर है क्या, किलोमीटर है क्या, सेंटीमीटर है क्या, मिलीमीटर है, भगवान जाने। वी हैव ओनली अ नंबर, ठीक है। एंड ए नाउ वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर। सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, we don't know about the unit, whether it is meter, whether it is centimeter, whether it is kilometer, जो भी हो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल कंसिडर, मैं यूनिट की जगह यूनिट ही लिख दूंगा। क्या बोला, देखो अभी, देखिए आई एम राइटिंग 5 प्लस, आई एम फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, ओके, 6 plus 4 is 10 plus 4 is 15. So I will write 15. And dear students, I don't know about the unit. So I will write unit here. Unit. Okay. Whatever the unit may be. जो भी unit होगा वो unit की जगह unit ही लिख दो बस, simple. Okay. We don't know about the unit. So we will write UNIT. Unit. Whatever the unit it is meter, kilometer, centimeter, जो भी है वो unit आएगा. ठीक है. Okay. Now I hope you understand. If you want to write, you can write. You have a 30 seconds. Okay, then I will erase it. You have a 30 second. After that, I will erase that. 1 minute. I want to focus the camera. Give me a 1 minute, okay? Okay, everyone, now we are moving towards the third example, and the example is written on the board. So first of all, we have to read the problem. क्या, ठीक है, read करते हैं. Find the unknown length of any figure. Unknown length. What is meant by unknown? Unknown का मतलब हमको पता नहीं है, ठीक है. Find the unknown length of any figure if the perimeter is given. That is, suppose that there is anything, we have a polygon, okay. चलो सिंपल से एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, ठीक है. So I'm making a triangle here. Triangle बहुत simple है क्योंकि because there is only 3 sides we can easily understand. ठीक है. So that is a triangle and what is written here? Find the unknown length of any figure. ठीक है. हमको ये वाला साइड पता नहीं है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमको ये वाला साइड, that is suppose that it is the vertex A, that is the vertex B, that is the vertex C. Okay. Vertex means that is a point A, point B and point C. So I am writing the name of this triangle. What is the name of this triangle? Triangle ABC. Triangle का क्या नाम है? ABC. If you want to write the name of any polygon, we will use a points. हम लोग point से बताते हैं. ABC is a triangle. अब ABC एक triangle है, ठीक है? So the length, okay, ABC is a triangle. Now listen carefully. This is a point A, this is a point B, and this is the point C. And dear students, we don't know the length. That means we don't know the length ऑफ लाइन सेगमेंट AC. AC का लेंथ हमको पता नहीं है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वी डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट C. वी डोंट नो, नहीं पता A और C के बीच में कितना डिस्टेंस है, हमको नहीं पता. बट वी नो दैट दिस इज अ 5 सेंटीमीटर. बट वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट B इज 5 सेंटीमीटर. पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये जो पॉइंट B और पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस है, ये भी हमको पता है कि ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है. चलो ठीक है, हो गया जी, बहुत बढ़िया. बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना सिंपल इजी क्वेश्चन तो है ही नहीं. अब ये नहीं पता, ये हमको नहीं पता है. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट C वी डोंट नो, बट वी नो द पैरामीटर. व्हाट इज गिवन टू अस? इफ द पैरामीटर इज गिवन, पैरामीटर दिया है लेकिन एक अननोन लेंथ गायब कर दिया. मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक अननोन कर दिया. सो आई एम राइटिंग पैरामीटर P इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ध्यान से देखो सबके सब. What is this? This is a triangle ABC, and in this triangle the length AB, that means the length of AB is given, which is 5 centimeter. The distance between the point B and point C, that means the length of line segment BC is 6 centimeter. And the length of AC is not given, but one thing is given. एक चीज हमको पता है, that is the perimeter. Perimeter क्या होता है? That is a sum of all the sides.
तीनों को प्लस करने के बाद 15 आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको और इसको प्लस करने के बाद 15 आता है। दैट मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ क्लोज बाउंड्री, द टोटल लेंथ ऑफ क्लोज बाउंड्री इज 15 सेंटीमीटर। और दो का हमको पता है। अब ये कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, देखो टोटल 15 है लेकिन हमको दो पता है, तो एक काम करते हैं, लेट्स ऐड दिस एंड दिस थिंग, लेट्स ऐड द BC एंड AB, ये दोनों को ऐड कर दो। 6 + 5, दिस इज अ 6 सेंटीमीटर, दिस इज अ 5 सेंटीमीटर, 6 + 5 इज 11, 6 और 5 11 हो गए, 11 सेंटीमीटर। दैट मीन्स AB और BC को ऐड करने पे 11 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। और कितना बच रहा है? और कितना हो सकता है? ये 15 चाहिए हमको टोटल। वी ऑलरेडी हैव अ 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 15। 11 तो हो गया, 12, 13, 14, 15। दैट मीन्स दिस इज अ 4 सेंटीमीटर। आ गया? हाँ, ऐसे ही निकालना है बस। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड ऑल द गिवन साइड। इन दोनों को प्लस करेंगे, ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करेंगे, जितना भी दिया हुआ है पूरे को प्लस करेंगे और पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे। With what we have to do here, we have to add all the given length, and then we will subtract that sum of given length, sum plus addition of all the given length from the perimeter. You will get the unknown length. मिल गया? सिंपल था। कैसा किया मैंने? I just added the given length, that is 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को मैंने पहले प्लस कर लिया। So I will get 11 centimeter, and we know that the sum of all the sides, that is perimeter, is equal to 15 centimeter. अब कितना बच गया? So I will subtract. I want to find out the AC. AC मुझे चाहिए। AC is equal to 15 minus 11. So I will get 4 and 0. So that is a 4 centimeter. इसके लिए 4 आ गया। ठीक है? I hope you understand. अब ये समझने के लिए था। If you want to write, you can write. But अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, बिकॉज आई एम टेकिंग अ कॉम्प्लेक्स फिगर, थोड़ा सा बड़ा फिगर लूंगा मैं अभी। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी, वीडियो बड़ा मत हो जाए। हाँ ठीक है, ओके, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। नाउ लेट अस सपोज दैट आई हैव अ क्वाड्रिलेटरल। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? क्वाड्रिलेटरल हैव द 4 साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है। ठीक है? सो आई एम गिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव द नेम टू द क्वाड्रिलेटरल। पहले इसको नामकरण संस्कार कर दो भैया। हैं? ये A है, इस पॉइंट को मैं B दे देता हूं, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। सो दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम बना दिया मैंने? ABCD। अब हमको लेंथ दिया हुआ है, this is a 10 centimeter, this is a 6 centimeter, ठीक है, and this is a 3 centimeter, and the perimeter is given, dear students, 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये हमको मालूम नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? The distance between the point A and point B is given, that is 10 centimeter. The distance between the point A and point B is given, that is 3 centimeter. और ये भी बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट AB का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट AD का लेंथ है 10 centimeter. The line segment BC have the length 6 centimeter, and we don't know about the length of line segment CD. That means we don't know about the distance between the point C and point D. नहीं मालूम। लेकिन एक चीज पता है, एक चीज पता है कि द सम ऑफ ऑल द साइड, द सम ऑफ ऑल द साइड, पूरे साइड को प्लस करने के बाद पेरीमीटर जो है, दैट इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स, विच इज अ 24 सेंटीमीटर। पूरा प्लस करने पे 24 आता है। तो एक काम करो, इन तीनों को पहले एडिशन कर लो, है ना? पहले इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं। अब जो भी आएगा, वॉट एवर द आंसर इज, उसमें जितना कम पड़ेगा 24 आने के लिए, that will be the length of CD. फिर से बोलता हूं एक बार। First of all, we have to add all the given length, that is 10 centimeter plus 3 centimeter plus 6 centimeter. Whatever the answer is, it is the sum of 3 sides. But we know that the sum of 4 sides is 24. So जो आंसर आएगा हम लोग उसको 24 में से माइनस कर देंगे. We will subtract from the perimeter. So we will get a length of CD. Okay, you understood? चलो ठीक है. First of all, we have to write sum of all
ऑल गिवन साइड, अरे अच्छे से लिखना भाई, हाँ, गिवन साइड, गिवन का मतलब होता है जो ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। अब क्या करूं मैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऐड 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर plus 6 centimeter, and you will get 10 plus 3 is 13 plus 6 is 19, so that is a 19 centimeter. Dear student, इन तीनों को मिला के 19 हो चुका है और चौथा जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो 24 आना चाहिए. So what we have to do, what we have to find, now we have to subtract the 19 from 24. ठीक है, अभी 4 साइड है, 5 रहती तो जितने भी गिवन साइड है उसको प्लस करो, पैरीमीटर में से माइनस कर दो, खत्म, सिंपल. नाउ वी विल राइट length of unknown, length of unknown side, unknown मतलब जो हमको मालूम नहीं है, that is CD is equal to perimeter minus, perimeter में से माइनस करेंगे sum of all the sides, that is 19. perimeter में से मैं 19 माइनस करूंगा, ठीक है, that is perimeter is what, I will write P के जगह मैं 24 लिख दूंगा, 24 minus 19, ठीक है, and that is equal to what, that is 5 I think, yes, 4 तो यहाँ का हो गया and 1 is here, so that is a 5 centimeter. आ गई भैया, the length of CD is 5 centimeters. I hope you understand. You have to note down this example in your maths notebook, okay, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको नोटबुक में लिख लेना है. Okay dear students, so now let's move towards the exercise 10.1, and exercise 10.1 में जो question number A है, that is written here, find the perimeter of, and some figures are given, some objects are given, and we have to find the perimeter. Okay, so always remember that the perimeter is what, it is a total length of closed boundary, or we can say that it is a length around the figure. देखो ध्यान से बोल रहा हूँ, length around the figure, पूरा around मतलब पूरा का पूरा, अराउंड, जस्ट नियर बाय टू दैट फिगर, दैट इज अ टोटल लेंथ ऑफ क्लोज बाउंड्री, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, द सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. ओके, सो एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज अ ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है भैया, एंड नो इट इज रिटन हियर पेंसिल बॉक्स, हाँ जो भी है, इट इज लुकिंग लाइक अ ज्योमेट्री बॉक्स. तो ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, है ना, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है वो रेक्टेंगल के जैसा दिखता है. सो द क्वेश्चन इज, हियर द टू साइड इज गिवन, द लेंथ इज गिवन विच इज अ 15 सेंटीमीटर, ध्यान से, द लेंथ इज गिवन विच इज 15 सेंटीमीटर, एंड विड्थ, विड्थ और या फिर ब्रेड्थ भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज 5 सेंटीमीटर. ओके, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपका ज्योमेट्री बॉक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में है, सो दिस साइड इज 15 सेंटीमीटर, तो इसके साइड जो है इधर वाली साइड रहेगी वो तो 50 सेंटीमीटर रहेगी, है ना. नहीं, दिस साइड एंड दिस साइड, बोथ द साइड्स आर सेम, हमको तो पता है. अरे भैया अगर मेरे पास अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इफ आई हैव अ बुक, यू कैन सी हियर, you can see here it is a book and this book is in the rectangular form, स्पेशली स्क्वायर तो नहीं है बट रेक्टेंगल ही है. सो दिस साइड जितना ये है उतना ही ये है, दैट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड्स आर सेम, दिस साइड एंड दिस साइड्स आर सेम. ओके, सो इफ द वन साइड इज गिवन इन अ रेक्टेंगल, डोंट बी कंफ्यूज, अगर एक ही साइड या दो साइड लिखा है तो कंफ्यूज मत होना. इफ दिस साइड इज 15 सेंटीमीटर, so this side is also 15 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, अपोजिट साइड सेम होती है, ठीक है. So this is 15 centimeter and it is given that it is a 5 centimeter. So that is also 5 centimeter. अब ये भी तो 5 centimeter ही होगा ना, हाँ, ये कोई मंगल ग्रह से थोड़ी उठ के आया है, ये तो अलग अलग लेंथ हो जाएगी, ज्योमेट्री बॉक्स है भाई, हाँ. So that is the rectangle. Now we know all the sides. अब हमको पता है कि इसकी पूरी साइड पता चल गई. चलो भैया, now we will add, if you want to find out the perimeter of any figure, sum of all the sides, उठा के सबको प्लस कर दो. इधर से शुरू करता हूँ, 15 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. ओके, 15 plus 5 20, 15 plus 5 20, that means 20 plus 20 is
40 सेंटीमीटर आता भी है क्या? हाँ आता है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर इज द पैरीमीटर। अरे तो बड़ा आसान था। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बट इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एज यू कैन सी देर इज अ डोर, वहां पर एक डोर बना हुआ है, ठीक है। देर इज अ वन डोर, अभी बना था एक ब्यूटीफुल सा डोर। गिव मी सम टाइम, ठीक है। दैट इज अ डोर, हमारे घर में ऐसा ही डोर होता है ना। ये लो दरवाजा बना दिया भाई, अरे गड़बड़ हो गई। ठीक है, बन गया दरवाजा। हाँ, चांद सूरज बना दो भैया। दैट इज अ डोर, ठीक है। अच्छा, वहां पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मेरा मन ऐसा कर रहा बनाने का, बना दिया। हाँ, वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द whatever way with the design, we want to find out the perimeter of door, ठीक है। एंड फॉर द डोर वी नीड अ लेंथ एंड ब्रेथ। अब जो लेंथ है वो है 1 and 1/2 मीटर, 1 and 1/2 मीटर, एंड that is a 2.5 meter. ध्यान से देखो, what is given to us? This is 1.5 meter, which is a width, and the length is 2.5 meter. अगर दरवाजा इधर से 2.5 है तो इधर से 5.5 होगा क्या? नहीं। If it is 2.5 तो ये भी 2.5 होगा। This side is also 2.5 meter and this side is 1/2 मीटर। पहले देख तो लो, दिख रहा है क्या नहीं कैमरे में? अरे वाह, कितनी अच्छी बात है, ये तो कैमरे में दिख ही नहीं रहा। गिव मी अ 1 मिनट, गिव मी अ 1 मिनट। कैमरे को झुकाता हूँ थोड़ा सा। ओके, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट माय डियर। ओके, नाउ यू कैन सी प्रॉपरली। 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, गिव मी सम टाइम, focus the camera. Okay, now you can see here, if it is 1.5 meter, that is also 1.5 meter. If the length is 2.5 meter, तो उधर वाला भी 2.5 meter. Now we know the all the sides. अब हमको पूरी की पूरी साइड पता चल चुकी है। अब अगर हमको पूरी साइड पता चल चुकी है तो ऐड कर दो ना भैया, इसमें दिक्कत क्या है? सो ऐड perimeter is equal to 1.5 प्लस 1 and 1.5। ओके, ये दोनों को मैंने एक साथ ऐड कर दिया। मीटर मीटर प्लस 2.5 मीटर, 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर। चलो, वी हैव ऑलरेडी लर्न एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो एक काम करते पहले होल पार्ट को एडिशन करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 is 6, so 6 is a whole part. Okay, 6 plus करो 1/2 मतलब half plus 1/2। Dear students, listen carefully, 1/2 plus 1/2 आधा और आधा, 1 whole हो चुका है। And here 1/2 plus 1/2, that means there are 4 times 1/2, and we know that 1/2 plus 1/2, 2 times 1/2 gives us 1 whole. That means 1/2 plus 1/2 1 whole, 1/2 plus 1/2 again 1 whole, तो और 2 whole आ जाएंगे। तो 2 whole लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। चाहो तो ऐसा सेपरेटली लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बट आपको पता है इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 6 + 2 8 सेंटीमीटर, बड़ा इजी था। ओके, एक क्वेश्चन मैं और एक लिख देता हूँ यहाँ पर। गिव मी 1 मिनट, एक क्वेश्चन इधर सॉल्व करूंगा मैं, एंड दैट इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर इज वन स्टीगर एंड द लेंथ ऑफ द स्टीगर इज 5 सेंटीमीटर एंड दूसरे का जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही ईजी है, अगर इधर वाला 5 है तो इधर वाला भी 5, ऊपर वाला 2 तो नीचे वाला भी 2, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, हो गया 14 सेंटीमीटर। कहानी खत्म हो गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देयर इज अ ब्यूटीफुल सा सैंडविच, नहीं ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, टेस्टी बोल सकते हैं। हाँ, सो दैट इज अ टेस्टी सैंडविच and the 3 sides of a sandwich is given, and if you want to find out the perimeter of that sandwich, you have to add all the sides। तीनों को उठाकर प्लस कर देना भैया, बस 12 + 12 is 24, 24 + 8, 24 + 8 is 32। खत्म हो गया। 24, 24 + 8 is 32, हो गया, खत्म कहानी। फिर बाद में एक सोप है, साबुन है भैया। 10 + 13, 10 + 13 + 10 + 13, 2 बार 10 2 बार 30, हो गया। 13 × 13, 13 × 2 = 26, 26 + 20 46 आ गया। 46 आंसर है फिफ्थ का। और सिक्स्थ वाला तो बहुत ईजी है, देयर इज अ रुमाल, दैट मींस देयर इज अ स्क्वायर।
and the side of the square is 7 centimeter, 7 centimeter, 7 centimeter, 7 centimeter. That means 4 times 7. 7 and the 7 to the 14, 7 to the 21, 7 4 the 28. हो गया 28 आंसर है उसका. अरे क्या बताऊं, इसमें तो सिंपल है सब. I hope you understand. You can solve the question. हाँ, look the question number C. Question number C में क्या है? In the question number C, you have to find the length of each side using the scale. आपके scale से आपको वो चारों side find out करना है और उसका perimeter भी लिखना है. ठीक है? You have to find all the sides, and if you want to find out the perimeter of that figure, you have to add all the sides. You will get. Question number D का first वाला आप लोग कर लोगे. Second question देखो. In the second question, what is that? There is a 6 meter. जो बीच में 6 meter दिख रहा है ना, उसको add मत करना. Because that is not on boundary. We want to add only boundaries. हमको सिर्फ boundary का मतलब है. वो 6 meter बीच में हम लोगों को confuse करने के लिए दिया हुआ है. ठीक है? So don't add that 6 meter. Okay? I hope you understand. So करो question number D तक exercise 10.1. Okay? Thank you so much for watching the video up to till now. Have a good day and bye bye. And please note down these answers in your notebook. ये दोनों को लिख लो फिर.